Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our comparative anatomy of vertebrate paper. In this video lecture, we're going to discuss about the comparative account of respiratory system in vertebrate. So, in your syllabus, there are included the respiratory organs. Different type of respiratory organs are included in your syllabus. So, we will discuss it in detail. So, let us proceed. Now, certain questions come up in our mind. That first question is that what is respiration. Next question is that what is respiratory system, and what are the different type of organs included for the respiration. So let us see that. So I will answer all these questions. So first question is that what is respiration. Respiration is a method in which the gaseous exchange takes place. Okay, the gaseous exchange. Now, not only gaseous exchange is taking place, this gaseous exchange is included in the formation of energy. So this gaseous exchange, after the exchange of these gases, the energy is produced inside the body. Okay, so this is the process of respiration, which is done by the inhalation and exhalation of gas. So the inhalation of O2 is done and the exhalation of CO2 is done, which means that O2 is intaken or inside the body, is taken inside the body for the formation of energy, whereas in the end CO2 is released in the atmosphere. Next question is that what is respiratory system. So the system what ever is included in the process of respiration. तो जो प्रोसेस रेस्पिरेशन का है, जो सिस्टम वो प्रोसेस करवा रहा है इनसाइड अवर बॉडी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. एज वी ऑल नो दैट देर आर सर्टेन ऑर्गन सिस्टम्स इन वर्टिब्रेट्स जस्ट बिकॉज दे आर हायर एनिमल्स. तो एक ऑर्गन नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक सिस्टम प्रिपेयर करता है वो, और फिर वो सिस्टम काम करता है फॉर द सर्टेन मैकेनिज्म. लाइकवाइज दैट रेस्पिरेशन के लिए भी कुछ ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं जो रेस्पिरेशन करवाते हैं. नाउ नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो एज व्हेन वी विल जस्ट गो फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो जो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो दो टाइप का होगा. फर्स्ट इट विल बी अ ब्रैंकियल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इट विल बी पल्मोनरी रेस्पिरेशन. You might have heard this in your 12th standard, and you might actually not just might, I just know that you have learnt about it in your 12th standard only. So I'm not going to explain it in detail. Bronchial respiration क्या होता है? The respiration which is including the gills for respiration. So जो aquatic animals होते हैं उनमें gills के through respiration होता है, और इसी को हम बोलते हैं bronchial respiration. और lungs are included into the pulmonary respiration, क्योंकि lungs को pulmonary organ बोला जाता है. So that's why lungs are included in the pulmonary respiration. Now ये तो clear हो गया. As per your syllabus is concerned, in your syllabus there are different type of organs included for the study purpose. So यहाँ पे in your syllabus there are gills are included, lungs are included, skin is there, not swim bladder, okay, एयर सैक्स आर इंक्लूडेड. एयर सैक्स क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगी. एंड सर्टेन एक्सेसरी ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड फॉर द, और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है. नाउ लेट अस प्रोसीड. Let us see what type of organs are they and what is their mechanism. So first comes the gills. Gills क्या होते हैं? अभी मैंने बोला कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में वो होते हैं. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इन सेंस कि जो अंडर वाटर रहते हैं एनिमल्स. सो बेसिकली वी नो दैट इन अमंग द 5 क्लासेस, जो 5 क्लासेस हम पढ़ रहे हैं, पाइसेस, सिम्फिबिया, रेप्टिलिया, एज एंड मैमल्स, उनमें से 2 क्लासेस है जो पानी में रहती हैं.
ओके। और जैसे कि गिल्स का पता हो तो गिल्स तो ऑब्वियसली जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है वो सब में प्रेजेंट है, पांचों में प्रेजेंट है, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ की बात कर रहे हैं हम। गिल्स जो है थ्रू आउट द लाइफ कुछ एनिमल्स में ही होते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गिल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गिल्स। ओके, एक होगा एक्सटर्नल, दूसरा होगा इंटरनल गिल्स। ओके, एक्सटर्नल गिल्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल गिल्स आर टाइप ऑफ गिल्स विच आर not true gills. They are called as pseudo gills, or they are not true gills. Not true gills. Okay, they are not true gills, तो उनको pseudo gills बोला जाता है। अब pseudo gills क्यों बोल रहे हैं? because they are not present inside the body. Okay, वो क्या है? एक्सटर्नल साइड पे, यहाँ पे देख सकते हो कुछ पिक्चर्स है मेरे पास में। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ a fish and this is a picture of larvae, जो tadpole larvae होते हैं ना, फ्रॉक के जो लार्वे, उनकी पिक्चर है, उनमें एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ वन सैलामेंडर। सैलामेंडर इज अ एनिमल विच इज़ इंक्लूडेड इनटू द एम्फीबिया कैटेगरी। तो यहाँ पे सैलामेंडर में भी एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर द गिल are present outside the body. So whenever they swim, they will use these gills for the respiratory purpose. Okay, so these are the external gills. External gills में इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, कॉम्प्लेक्शन नहीं है, वो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होते। दे आर जस्ट प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड दे आर यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन। Now let us proceed for the internal gills. अब internal gills क्या होते हैं? These gills are called as true gills. Okay, they are called as true gills. True gills क्यों बोला जाता है? Just because they are made up of certain parts. जो होता है gill filaments are there, gill lamellae are there, and gill arches से वो attach होते हैं, filaments and lamellae. Okay, lamellae क्या होते हैं? Lamellae are the part where the gaseous exchange take place. यहाँ पे देख सकते हो there is an operculum, operculum होगा और इसके नीचे gills present होंगे। gills क्या करेंगे? The water will be taken inside the mouth. माउथ के थ्रू वाटर लिया जाएगा और गिल्स के थ्रू वो बाहर एक्सटेंड किया जाता है। एंड ड्यूरिंग दैट time the dissolved oxygen is taken or is absorbed by the gill lamellae. Okay, जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है, जो O2 इनटेक इनका और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने का जो मेकेनिज्म है वो कहाँ पे हो रहा है? गिल लैमिले में हो रहा है। तो गिल लैमिले आर हैविंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, or the surface which just carry out the exchange of gas inside the fish body. Okay, so this is how the gills are there. गिल आर्चेस होते हैं और गिल लैमिले होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन में जो इंक्लूडेड होता है दैट इज लंग्स। सो लंग्स आर द मोस्ट कॉमन lungs are the most common organ for the respiration in vertebrates. So lungs fish में होते हैं, जैसे कि most primitive type के lungs जो होते हैं वो जो lung fish होती है उसमें पाए जाते हैं and they are just a kind of capillary system होता है वहाँ पे। सेकेंड, लंग्स प्रेजेंट होते हैं सैलामेंडर में, ये एक एम्फीबियन एनिमल है और फ्रॉग भी एक एम्फीबियन एनिमल है, वहाँ पे भी लंग्स प्रेजेंट है। लेकिन वो कैसे हैं? दे आर मोस्ट सिंपल एंड स्मूथ वॉल। जो लंग्स है सैलामेंडर की, यहाँ पे देख सकते हो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और स्मूथ है और एक कैपिलरी सिस्टम है, कुछ कॉम्प्लेक्शन नहीं है यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो पाइपलाइन टाइप का एक सिस्टम है। ओके, एंड दे आर नॉट डिवाइडेड इन एनी पार्ट। लेकिन जब हम फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग देखते हैं तो देर आर डिविजन्स कैन बी सीन, सो दे आर सब डिवाइडेड इनटू द सर्टेन पार्ट्स और यहाँ पे रेस्पिरेशन का जो गैसेस एक्सचेंज है वो होगा। सो यहाँ जो है सॉरी
इन केस ऑफ सैलमेंडर देयर इज़ नो डिवीजन, यहाँ पे डायरेक्टली रेस्पिरेशन के लिए जो है वो डायरेक्ट रेस्पिरेशन होगा। यहाँ फ्रॉग में सब डिविजन्स आर देयर, सर्टेन सैक्स आर प्रेजेंट जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट जो लिजार्ड है या रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स में भी जो है वो सब डिविजन्स होंगे। ओके, यू कैन ऑब्जर्व हियर सब डिविजन्स आर देयर, सैक्स आर देयर, सो विच जस्ट कैरी आउट द गैसेस एक्सचेंज इन द सरफेस। जो सरफेस है और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा सरफेस एरिया इन केस ऑफ रेप्टाइल्स। और कनेक्शंस एंड इंटर कनेक्शंस विल बी देयर। देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शंस नहीं है, यहाँ पे सब डिविजन्स है लेकिन कनेक्शंस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो सब डिविजन्स आर देयर प्लस कनेक्शंस आर देयर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर जस्ट हैविंग अ कनेक्शन विथ ईच अदर। नेक्स्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स ऑफ बर्ड्स वी कैन से, एव्स जो हैं उनके। सो लंग्स जो है बर्ड्स के, दे आर हैविंग मोर इफिशिएंसी एंड दे आर मोस्ट इम्प्रूव्ड। क्यों? बिकॉज दे आर प्रोवाइडेड विथ एयर सैक्स। यहाँ पे देख सकते हो एयर सैक्स आर देयर। ओके, अब ये एयर सैक्स क्यों है? दीज एयर सैक्स एक्ट्स एज अ रिजर्वायर फॉर द एयर ड्यूरिंग फ्लाइट। जब वो फ्लाइट करते हैं, जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि एयर सैक्स होते हैं जो क्या करते हैं, एयर रिजर्वायर का काम करते हैं। वो ऑक्सीजन को रिजर्व करके रखते हैं या गैस को रिजर्व करके रखते हैं फॉर द फर्दर यूज़। तो जब वो एयर इनहेल करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्ड्स रेस्पिरेशन, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि वो 100% एयर अंदर ले रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस error. Okay, if we are saying that they are taking 100% air inside their lungs, तो यहाँ से वो पास हो जाएगी डायरेक्टली 75% जो एयर है, सिर्फ 25% यहाँ रहेगी, बाकी जो 75% है वो एयर बैग में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ओके, सो दिस 75% एयर इज़ यूज्ड एज अ रिजर्वायर। यहाँ पे जब एक इंटर हो रही है गैस, तब 100% में से 25% यहाँ यूज़ हो रही है, बाकी 75% एयर सैक्स में दे दी जा रही है। और ये एयर सैक्स में जो 75% है उसमें से जब एयर वापस जाएगी, ओके, जब वापस जाएगी तब यहाँ पे स्लाइटली ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा। सीधी बात है कि 100% में से सिर्फ 25% एयर वो यूज़ कर रहे हैं फॉर द रेस्पिरेशन, बाकी सारी वो रखी होती 75% फॉर द यूज ड्यूरिंग फ्लाइट। ओके, सो दिस इज हाउ द वर्क और mechanism is given, or the lungs of birds are provided with the air sacs for the reservoir। वो रिजर्व करके रखते हैं एयर को और फिर बाद में वो उसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट। Next, the most elaborated and most highly improved and modified or respiratory organ is of mammal, or lungs are of mammals. So वो क्यों ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज दे आर प्रोवाइडेड विथ मिलियंस ऑफ स्मॉल सैक्स, एयर सैक्स होती है वहाँ पे जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है। ओके, ये एयर सैक्स हमको डिटेल में पढ़ना है, वो मैं बताऊँगी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है। सो यहाँ पे दे आर हैविंग मोर ब्रांचेस, जैसे इंटर कनेक्शंस यहाँ पे थे, ओके, लिजार्ड केस में, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस एंड इंटर कनेक्शंस हो गए। जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रैंक्यूल्स विल बी देयर, प्राइमरी ब्रैंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रैंक्यूल्स, ब्रैंक्यूलाई विल बी देयर, ब्रोंकस विल बी देयर, एंड देन लास्टली एल्वियोलाइज विल बी देयर, जिनको एयर सैक्स बोला जाता है, जहाँ पे एल्वियोलाई इज द साइट वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। सो दे आर रिच vascular network is provided inside the mammalian lungs. So I think we should stop here for today's lecture, and I'm gonna explain you about skin, air sacs and accessory organs in next lecture. Till then, have a nice day, stay safe. Thanks for watching.